जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 594th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today it's a great day. It was a great day for Nifty and Bank Nifty because we were long over the weekend, and today markets opened with a big gap up opening. So it was a great day. Now let us discuss what's the roadmap ahead for tomorrow's session and how to deal with Nifty and Bank Nifty stocks, global markets, commodities, Forex, and all these things. So we will discuss every asset class one by one, and towards the end of the session, we will take your stock queries. Before I start, let me just remind all of you that the next training is scheduled on July 10th. So if you wish to join this training, if you wish to learn from us, you can WhatsApp and you can register. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 4 months. So we are going to cover a lot of topics, and definitely everybody must attend this training. All right, so let's start today's session. So right now we can see the global markets, they are pretty much flattish with a positive undertone. They are still digesting the gains that were made on Friday. So Friday, all these markets had rallied big time. S&P 500 is still trying to digest the gains. It was up by almost 3%, more than 3% on Friday. So today it's pretty much assumed that they will trade in a small range with a positive bias. Now let's have a look at the forex market because some action is happening over there. US dollar is flattish as of now, and it is still in a range, trying to consolidate, trying to move higher. However, it is definitely facing some resistance. Still, overall, US dollar is in no man's land. It can definitely try to shoot one more time on the higher side, जैसा कि कल मैंने इसे explain किया है. Maybe it can go on to make a rising wedge structure like this and then peak out in this particular format. So this is also quite likely to happen. So US dollar is still 50-50 exactly एकदम range के बीच में है. So it's very difficult to say which side it should go, but I think 80% chance ये है कि it will respect this big range and it will try to go on higher side for once. Probably it may not sustain, that is most likely, but yes, one more trip on the higher side is definitely coming in the US dollar. So if I talk about US dollar, it becomes imperative to also talk about the USD INR. So USD INR is behaving in a very peculiar manner, but I think today USD INR has given, uh, I would I would say, a fresh breakout. Okay, a very small breakout though. Okay, but certainly there is some momentum which is now catching up in the USD INR. So USD INR, the NSE Forex futures, we have expiry this week. It is still bullish, and I would say that till $78 or 78 rupees is holding. USD INR pair is still bullish. I think 79.5 will be hit very very soon. Till 78 is holding 79.5. I think there is a 80% chance that for once, at least for once, we will go and shoot 79 to 79.50 level. Okay, 78 is now a very crucial base. This should not be broken, and 79 and 79 and a half, that is looking like a possibility as of now. So that's the view on the USD INR pair. Now today we can see the euro is bullish as of now. Comparatively it is higher than the other pairs, but euro पे जो मेरा view है कि some upside is coming, but this is a rising wedge kind of a structure overall in a downtrending market. So it should saturate over here. This is also a previous supply zone. So the supply should definitely come, and it should decline once again. Now, noteworthy that the Euro USD did not make a new low over here, whereas the British pound has already made a new low, and it has flushed the previous bottom. So I think there is one fall pending in the Euro market. Okay, so that is the reason why we are bearish on the Euro INR, but we are going with very soft hands. मैंने आपको बताया था कि Euro INR जो है ये
और 50 पैसे ऊपर जा सकता है, बट later on after going higher it should drop again. So we are still maintaining that bearish stance, and tomorrow will be the day for euro INR, because by that time the euro USD must have reached the resistance zone. So let's watch the euro INR tomorrow. It is the currency for tomorrow's session. लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश पाउंड. सो ब्रिटिश पाउंड में आज जो है बहुत ही स्वीट ट्रेड हुआ. स्वीट ट्रेड इसलिए कि सुबह जो है ब्रिटिश पाउंड एक 20-25 पैसे के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था. लेटर ऑन इट बाउंस्ड हायर एंड देन वी शॉर्टेड अगेन एंड इट ड्रॉप 20 पैसे. So we are bearish on the British pound and it is giving very nice swings, and fresh short आज हमने वापस से किया है. It is also pretty much position like the euro, so it can definitely try to move little higher in this particular zone over here, but then these are very very strong resistances and I don't think it is going to break out. It will first come lower. That is the more probable situation, and then probably it can start some bullish moves. So the path of least resistance is definitely on the lower side. So we are bearish on this British pound. So British pound में जो आज हमने शॉर्टिंग किया ऑलमोस्ट डे हाई पे शॉर्टिंग है, 96.4 पे शॉर्टिंग है एंड ऑलरेडी इट्स इन प्रॉफिट. सो यू कैन कीप शॉर्टिंग 96.5 से लेके 97. ये पूरा जोन जो है दोस्तों ये शॉर्टिंग का ही जोन है, तो इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो. और डाउन साइड में कम से कम जो है इसमें हम 95 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जैसा अभी मैंने एक इंटर मार्केट में आपको बताया कि यूएस डॉलर कैन गो हायर वंस, यूरो यूएसडी कैन मेक अ न्यू लो. ओके, सो इफ दिस हैपेंस राइट, सो ब्रिटिश पाउंड जो है बाय दैट टाइम वुड हैव अप्रोच्ड समवेयर हियर or probably somewhere here also. So that will translate into further declines on the NSC. Okay, now this is a fag end of a move. तो ये जो एक बड़े डिक्लाइन की जो ट्रेंड हमें 6 महीने से दिख रही है, इसका ये एक लास्ट पोर्शन है. सो हियर एवरी ट्रेडर मस्ट बी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे ये मूव जो है काफ़ी फास्ट तरीके से होगी और अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो आप फंस जाओगे. ठीक है, सो लेट मी वॉर्न यू बिफोर हैंड. So as of now, things are looking good and things are in control. Now USD JPY, again it has started to rally intraday basis. और इस पे जैसा कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक मोर और लेस लाइक द यूएस डॉलर, and here also we can see some rising wedge structure being formed, and later on it should also saturate and it should also start to decline. So USD जो JPY INR पेयर है, जैपनीज येन इंडियन रूपी JPY INR पेयर है, दैट इज बुलिश. और इस पे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 57.5 से लेके 57 तक का ये पूरा रेंज जो है बाइंग जोन है. ओके, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 60 प्लस फॉर द टाइम बिंग. सो ये व्यू इसमें अभी भी बुलिशनेस जो है इंटैक्ट है. सो प्रीटी मच दैट सम्स अप द फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस. एक बार हम क्रूड और कमोडिटीज की तरफ चलते हैं. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जितने लोग नए लोग अभी जो ज्वाइन हुए हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार. आई होप आज का दिन आपका अच्छा था. चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इफेक्ट ऑफ इक्विटीज और इफ USDINR कुछ नहीं होगा इक्विटीज में. इक्विटीज में इम्पैक्ट मैंने जैसे कल बताया कि इक्विटी अब जितनी गिरेगी उतना ही वो बुलिश होगा. ओके, let's talk about the crude and all these things. So crude में बम्पर रैली हो रही है और पिछले 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि क्रूड इज बुलिश. कोई भी गिरावट आती है क्रूड में, क्रूड 8,000 से 9,000 के स्लैब में ही ब्रॉडली स्पीकिंग चलेगा. एंड दिस वाज जस्ट द एक्सपायरी और नॉट एक्सपायरी, देयर वाज सम इफेक्ट. सो क्रूड ने जो व्यू था व्यू को फॉलो किया है, एंड इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग देन कांग्रेचुलेशन, 9,000 लेवल जो है ये आने वाला है. You can lock in some gains over there. So crude came below the 65-day moving average after a long time and unable to sustain below it, thereby creating a fresh round of breakout. This is certainly going 9,000 9,200 level. So crude में बड़ी तेजी हम देख रहे हैं. नेचुरल गैस, कल रात को मैंने एक्सप्लेन किया कि नेचुरल गैस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और 460 से लेके 500 का ये एक ट्रेडिंग रेंज होगा विद अ पॉजिटिव बायस, राइट. एंड टुडे
हमने नेचुरल गैस पे 500 के लेवल को ब्रीच किया है. सो 500 का जो लेवल है बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है. नेचुरल गैस इज बुलिश. आई थिंक नेचुरल गैस में एनी डिप दैट कम्स इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. पेशेंस रखो. 485 के आसपास अगर आता है, इफ इट कम्स हियर, ओके, दिस इज अ नाइस एरिया टू गो लॉन्ग. आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं. इस डबल बॉटम के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. And then targets will be to backtest this big candle range bottom which is at least 560. सो बड़ा ट्रेड है. 485 से 460 के आसपास का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 560. तो काफी बड़ा ट्रेड है. लगभग 80 पॉइंट का ये ट्रेड है. 520 एक पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 520 एंड देन it should go till 560 580. That cannot be ruled out. Okay, once we are above 570 kind of a level, once we are above this trend line, right, we will go much higher. In that case, I won't be surprised if it goes till 650 also. Okay, so natural gas is a commodity to pay attention right now. Violent moves are going to happen, so trade as per your size, as per your capital. गलती करने की कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं है. Falling wedge pattern, falling wedge pattern on the verge of giving breakout. So it's very bullish, and I won't be surprised if we see NG all the way back to 650 very soon, holding this 440 450 level. तो जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बड़ा मौका है. ठीक है. So that's the broader view. Now I cannot keep giving micro trades in NG and all, because I do not have that much time. और नेचुरल गैस हर आधे घंटे में 20-20 पॉइंट मूव कर सकता है. आई एम शोइंग यू द बिगर पर्सपेक्टिव. बाकी आपको टेक्निकल्स आता है, प्राइस एक्शन आता है, तो आप उसको यूज करके ट्रेड कर सकते हो. आपने ट्रेनिंग में जो चीजें सीखी हैं उसके हिसाब से अपने चार्ट्स को रेडी करके आप उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. तो गोल्ड में कल रात को मैंने आपसे कह दिया था दोस्तों कि 51,000 दिखे तो शॉर्ट कर देना. और आज का हाई क्या है, लेट अस सी. आज का हाई है 50,997 और यू कैन से 51,000. सो दैट वाज अ शॉर्टिंग प्लेस. कल रात को मैंने स्पेसिफिकली आपको ये लेवल दिया था कि 51,000 आता है, 51,100 200, ये सब शॉर्टिंग जोन है. ये सब शॉर्टिंग जोन है, यहाँ से शॉर्ट करना है. and today you can see 300 points already ये drop कर चुका है. So sell on rise is intact on gold. Now going forward, gold पे जो मेरा ये stop loss था, ठीक है, और आपको याद होगा दोस्तों कि ये shorting view ये पिछले कम से कम 10 दिन से चल रहा है. ठीक है, ये जो सारे कैंडल्स हैं ये सारे कैंडल्स शॉर्टिंग के ही हैं. राइट. नाउ वन एडिशनल इन्फो यहाँ पे जो है हमें ऐड करना है वो ये है कि थोड़ा सा अब हम बैकफुट पे आएंगे शॉर्टिंग से. यानी शॉर्टिंग अब अगर आप कमा चुके हो अच्छा खासा इतने दिनों में तो ठीक है, यू कीप शॉर्टिंग, कोई इशू नहीं है, यू हैव अर्न्ड योर मनी. बट जो फ्रेश शॉर्टर्स हैं उन्हें केयरफुल रहना है और हमें अब इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस आप रखना है. यानी 51,500 लमसम आप जोड़ लीजिए. 51,000 तो थोड़ा सा हम स्केल डाउन करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे बिकॉज आई बिलीव गोल्ड if it doesn't break below 50,000 level, if it doesn't go like this, what will happen is it will do otherwise. It can do otherwise yet maintaining the bearishness. It can do otherwise yet maintaining the bearishness. इसका मतलब है कि ये थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स मूव देगा ऊपर में और फिर वापस से गिरेगा. बट हमें फिलहाल शॉर्ट टर्म देखना है. ठीक है. सो अभी हम बेरिश हैं, पिछले कई दिनों से बेरिशनेस अभी मेंटेन है और एक लमसम 51,350 51,400 ये एक मैं आपको लेवल दे रहा हूँ. कैंडल भी आप देख सकते हो आप खुद अपने चार्ट पे. ये जो कैंडल्स हैं लगभग 2 जून के आसपास की कैंडल है, इनके ऊपर इसे नहीं होल्ड करना है. ठीक है, बिकॉज दैट वुड मीन अ ब्रेकआउट ऑफ द डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन, right, where we have made significant touches, and that would also mean negation of this expanding wedge mini structure over here. Okay, and that can be bullish, so we don't want to take any chances. ठीक है, so that is the update on gold. रही बात सिल्वर, तो सिल्वर पे 56,000 का लेवल जो है पक्का है, बट अभी शॉर्ट नहीं करना है. थोड़ा सा काफ़ी ओवर सोल्ड है, सो यू कैन वेट
for a good time to short silver. 62,000, 62,500 thereabouts, they will be those will be good levels to short silver. uh, ओके, नेचुरल गैस अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बात करते करते 6 पॉइंट बढ़ गया नेचुरल गैस। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर अगेन ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी कोई ट्रेड कॉपर में नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम। सो इथेरियम ट्रेडिंग अंडर 1200, बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा। 650 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है जब तक हम सिग्निफिकेंटली $1,500 के ऊपर नहीं जाते हैं। ऑल दी रैलीज दैट आर कमिंग दे आर टू बी शॉर्टेड। बिटकॉइन जो है वापस से गिर चुका है एंड बिटकॉइन आई थिंक अगेन शुड गो नियर 15-16,000। सो इट्स बेरिश एज ऑफ नाउ। कोई भी इसमें रिवाइवल वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है, नथिंग, नॉट ऑन एनी टाइम फ्रेम। सो इस चीज़ का जो है हमें ध्यान देना है बिटकॉइन में। और जो क्रिप्टोज हैं इनमें खास तौर पे एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना है, किसी दे आर सेटिंग जस्ट अबाउ अ प्रीवियस bull market high. Generally, these levels they become supports. Now, what is happening is if you have declined significantly and you are coming after long time, you are coming here after a long time, you tend to respect these levels. Okay, you tend to respect these levels. So if this was a resistance, here it should act as a support. So they are acting as a support. But what is the problem? The problem is if you are coming at a very significant level, there has to be some responsive buying. Okay, the higher time frame traders, the investors, the big funds, that responsive buying is still missing. तो समटाइम्स क्या होता है कि जो बड़े फंड्स होते हैं वो फर्स्ट राउंड में बाय नहीं करते, दे वांट द रिटेलर्स टू sucked into it, and it shows some bounce, then it again falls. To check their conviction, the retail guys they give up, and then the institutions jack up the price. So ये एक probable path हो सकता है. Okay, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ because we are in the last week of June, so we can also see some institution based buying. बट इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि अगर इंस्टीट्यूशंस ने इसे बाई के बदले अगर सेल कर दिया, बिकॉज हाफ ईयरली रिटर्न्स वगैरह में अगर उन्हें दिखाई देगा कि यार बिटकॉइन की होल्डिंग में इतना लॉसेस है, सो दे ऑल्सो हैव सम थ्रेशोल्ड्स टू मेंटेन, सो प्रॉब्ली दे माइट स्टार्ट डंपिंग। अगर ये फ्रेश डंपिंग हो गया क्वार्टरली और हाफ ईयरली के चक्कर में, तो ये फिर वापस से एक टैंक हो जाएगा, एंड दैट विल बी द फाइनल कैपिचुलेशन फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड ऑल दिस क्रिप्टो थिंग्स। ठीक है, सो इट्स अ वेरी क्रूशियल stage. Next 4 days, next 3 days are very crucial. You can either see a bottoming process like this. अगर ऐसा होता है तो बिंदास बाय कर लो, ऐसे एक्टिविटी होने के बाद तब बाय करो यहाँ पे विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। अगर ये नहीं होता है तो फिर यू विल सी वन मोर राउंड ऑफ दिस कैंडल गेटिंग रिपीटेड हियर फॉर द रीजंस आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द बिटकॉइन एंड इथेरियम। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, और जिन्हें भी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आप फटाफट तुरंत ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कैन बी एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ग्रुप में रहने से बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन, यू कैन लर्न अ लॉट एंड यू कैन बेनिफिट ऑल्सो अ लॉट। Now let's go and talk about निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो निफ्टी में क्या हुआ, आज निफ्टी में बड़ा गैप अप हुआ और हमने जो है बॉटम से जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ से बनाई थी 17 कह रहा हूँ 15,300 लेवल से, वो फाइनली यहाँ पे जो है हमने इसे आज बुक किया डे ओपन पे। वाई बुक किया, क्योंकि ये हमारा प्री डिसाइडेड लेवल है, दिस इज द प्री डिसाइडेड रेजिस्टेंस जोन, राइट। So you had all these supports over here of this bottom, you had supports of this bottom, significant bottom that was made in March, you had this as a resistance, you had this as a resistance, so this has to act as a resistance. I mean, it's a no brainer. Plus you have horizontal resistance like this, so this was a booking area. So बहुत ही शानदार इसमें जो है बुकिंग हो चुकी है। अब फ्रेश क्या सिचुएशन है, तो आज मार्केट ने जो है एक ओपन हाई वाला एक कैंडल बनाया, एक बेरिश कैंडल बनाया, बुलिश डे बट कैंडल बेरिश। सो व्हाट इज द सिचुएशन, इज दिस अ टॉप अगेन एंड आर वी गोइंग टू डिक्लाइन ऑल द वे बैक टू 15,300, और वी आर गोइंग टू जस्ट इग्नोर दिस कैंडल एंड शूट डायरेक्टली टुवर्ड्स 16,200? इस चीज के ऊपर
थोड़ा सा लेट्स डिस्कस, थोड़ा सा जो है इसकी हम पोस्टमार्टम करते हैं। लेट अस सी द इंटरनल्स ऑफ टुडेज प्राइस एक्शन। सो आज की प्राइस एक्शन मोर और लेस मैं कहूँगा जो है ये टाइम पास है, कुछ हुआ नहीं, देयर इज नो सेलिंग, नथिंग, इट्स जस्ट अ लॉलीपॉप कैंडल टू क्रिएट अनदर बेयर ट्रैप। नाउ कल का जो दिन है इसे हम सिर्फ इंडिविजुअल के तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो कल का जो अप्रोच होना चाहिए वो सिर्फ कल के हिसाब से होना चाहिए, और कल की क्लोजिंग जो है वो पोजिशनल के हिसाब से होनी चाहिए। सो व्हाट डिड आई से, कल 9:15 से लेके 3 o'clock तक ट्रीट इट एज जस्ट इंट्राडे, एंड देन डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट्स आर क्लोजिंग दैट हाफ एन आवर ट्रीट इट एज अ पोजिशनल थिंग, ठीक है। बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो वापस से देखिए समझ में आ जाएगी। सो कल के लिए हम कैसे डील करेंगे, निफ्टी को कैसे ट्रीट करेंगे, सबसे पहली बात कि मॉब लेवल हो जाएगा 15,886, और कल जो है ना मॉब लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे 3 o'clock तक, या स्पेशली फर्स्ट जो एक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे होता है। सो वी हैव अ टॉप हियर, okay, try to go higher, made a lower high formation and then broke below this for namesake purpose. So pretty much you can say we have a, either we have a double bottom, or you can say we have a lower high lower low structure like this. So ideally on any bounce, not so greater bounce, on a smaller bounce the trend must continue to fulfill the pending objective over here, okay. सो मॉब लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस लॉजिक के हिसाब से हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा 15,866 और 70, राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैपन्स टू बी द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बॉटम ऑल्सो। So this is your mob level. Below this, we are slightly bearish for one target of 15,778, which is say 100 point. Second target हो सकता है this filling up of gap placed at 15,720, ठीक है। अब ऊपर के लेवल्स डिस्कस करते देन सिनेरियोस। इफ वी आर क्रॉसिंग द मॉब लेवल, आई मीन इफ वी आर ट्रेडिंग अबव द मॉब लेवल, then the bulls will be back in the game and they will try to take out this high. Why they will try to take out this high? Because there is a open is equal to high situation, so that candle needs to be repaired. So that is why they will go take out this high, reach where 15,960, 15,960. Now upon reaching here, if you see price getting bearish, price coming back under this, सारे लॉन्ग्स को काट देना, ठीक है। एंड इफ इट इज ट्रेडिंग बिलो वीवैप एंड इट इज बिलो दिस, क्रिएट अ शॉर्ट ट्रेड, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस और टारगेट विल बी 15,780। तो दो ट्रेड है। पहला ट्रेड अगर गैप अप करता है मॉब लेवल के ऊपर, ट्राई टू गो लॉन्ग, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, टारगेट हो जाएगा 15,960। 15,960 16,000 के स्ट्राइक प्राइस को टीज करके इफ इट स्टार्ट्स टू बिकम बेरिश इन अ वे आई एक्सप्लेन, यू कैन शॉर्ट अगेन हियर, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, और दूसरा ट्रेड हो जाएगा 15,780 वाला, 780 775, वॉट एवर इट इज, ओके। If it does this, it will create a fear in the minds of the trader. बट जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक करेक्शन इस वीक में आएगा जो कि जलजला होगा, जो कि सिर्फ डराएगा, ठीक है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा कुछ नहीं, इट विल ओनली वॉश आउट द वीक हैंड्स फ्रॉम द सिस्टम एंड इट विल सेट द स्टेज फॉर अ बिगर रैली। सो ऐसी कोई चीज आपको दिखती है, और अगर if it is happening say by 1 o'clock or 1:30 and there is still good amount of time left before closing, somewhere from this 15,750 zone you should see some bounce coming into the system। अगर ऐसा चीज होता है तो आप एक लमसम, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 15,630 को एक रेफरेंस लेके आप लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई कैनॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट, क्योंकि वो बहुत ही थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव सिनारियो है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम स्टिल सजेस्टिंग कि ऐसा अगर होता है तो 15,630 ये एक रेफरेंस लेवल लेके हम चल सकते हैं, and that should go and again make a new high, okay।
सो ये जो स्क्रिप्ट है ना कल की, इसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स, मॉब लेवल, अपसाइड टारगेट, डाउनसाइड टारगेट, फ्यू सिनारियोज आई हैव एक्सप्लेन। नाउ सपोज अगर कल गैप डाउन ओपन होता है आज के कैंडल के नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरे गैप को फिर ये फिल करेगा, एंड दिस इज अ गुड प्लेस टू अगेन ट्राई टू टेक सम लॉन्ग ट्रेड, बट ऑलवेज रिमेंबर 15,630 ये आपका लॉन्ग के लिए आखिरी स्टॉप लॉस है। इसके नीचे आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। इनफैक्ट कल का कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आई वुड नॉट लाइक इफ इट इज क्लोजिंग अंडर 15,800. So on a closing basis 15,800 plus must be protected, ठीक है। If this is being protected, I can guarantee you 16,200, बट दिस मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो वीडियो को 2-3 बार इस पोर्शन को ध्यान से सुनिए, सारी बातें जो है क्लियर समझ में आ जाएंगी। लाइन चार्ट पे फोकस है मेरा, क्योंकि दैट इज द क्लोजिंग बेसिस चार्ट, एंड आई कैन सी टू थिंग्स, वन इज बैड, वन इज गुड। द बैड इज दैट वी हैव back tested this double bottom structure, we have back tested the 21-day moving average, so this is a resistance prone area, and we have already tested that, and we took some resistance. We are also sitting just under the trend line resistance, okay, यानी intraday हम इसको टेस्ट करके आ चुके हैं, and we are also at this resistance. But the good thing is that the MACD is almost on the verge of giving a positive crossover with a very big bullish divergence. So all in all, जैसा मैंने आपसे कहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है। एनी ड्रॉप दैट कम्स, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। शार्पर द ड्रॉप और स्कैरियर द ड्रॉप, bigger the bullish swing that will come. So texture is bullish, context is bullish, we are at resistance zone, so यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। बट अगर कोई बड़ी गिरावट आती है, स्विंग स्विंग और पोजिशनल गिरावट आती है, तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे आपको बता चुका हूं मैं, 15,800 का लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे हम देखना चाहेंगे फॉर द करंट मोमेंटम टू सस्टेन। अगर ये नहीं होता है, दैट मीन्स वी आर अंडर दिस करेक्शन, तो इसके हम होने देंगे और फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। सो 15,800 इस लेवल को याद रखना। अगर आप अपनी कुछ भी एनालिसिस लेके आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक बफर के तौर पे 15,620 ये आखिरी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी फ्रंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। या सो बैंक निफ्टी तो बहुत ही शानदार था, जैसा मैंने लास्ट वीक या लास्ट थर्सडे फ्राइडे प्रॉमिस किया था कि 34,000 का लेवल आएगा, और 34,000 यहाँ पे आ चुका है। कल रात को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी में दिस लाइन इज वेरी ग्रेट बिकॉज इट्स अ रेजिस्टेंस, सो इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। और बैंक निफ्टी का आज का जो लो है ये प्रीटी मच ओवर हियर यहाँ पे, ठीक है। एट द सेम टाइम we have met a resistance also, angle wise we have made a resistance, so this was a support which backtested turned into resistance over here. You can see the flipping action. Now what is flipping action? Please go and refer to the training manual. Flipping action समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको पिच फॉक और ये सब चीज़ें समझनी है, तो यू मस्ट बी एक्सेलेंट इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लिपिंग एक्शन। चलिए अब सीधे लेवल की बात करते हैं कि कल का क्या सीन है इसमें। विजुअली एक चीज को आप समझिए कि दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन, एंड यू गैप्ड अप अबाउट दिस, एंड यू हैव closed above this, right? Now, most of the public with a bearish mindset will see this as a failure of the market. But if you are bullish, then look at as a success of the market. Okay, कि at least it could break above this resistance. ये फेलियर कब होगा? जब मार्केट इस फ्राइडे क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करेगा। इसीलिए कल मैंने आपको बताया कि 33,600 ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। यहां तक कोई भी गिरावट आती है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और फ्राइडे का जो बॉटम है इसको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, ओके, बिकॉज यू हैव दिस एज अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। ये कितना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, आप इसके ऊपर ब्रेक कर चुके हो, राइट। तो मार्केट बैक टेस्ट करने के लिए आ सकता है। मार्केट को यदि अगर सही तरीके से रिवर्स करना है, तो इट विल ब्रेक थ्रू दिस एंड क्लोज अ कैंडल लाइक दिस, दैट विल बी बेरिश, ओके। दिस इज नॉट बेरिश, दिस इज appearing like bearish, but it is not bearish. So कल का हमारा जो
ट्रेड का टेक्निक होगा बैंक निफ्टी में, दैट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड आई हैव मार्क द लेवल्स फॉर यू। एंड बहुत ही सिंपल अप्रोच है कल का। सी, for bank nifty tomorrow, I will suggest two ways to deal with. First, till we are not crossing this 33,980 or the 5 minute bottom here, okay, or roughly आप 34 समझ सकते हैं. So this is the mob level for tomorrow's session, but I will suggest how to deal with it. So 33,980 on the bank nifty spot, that is the make or break level. Okay, these are the break or make or break level, this entire zone over here, right? Below this, bank nifty is slightly bearish, I would say. Below this, bank nifty is slightly bearish, and we can go on to backtest this entire demand zone over here. Okay, so this zone comes 33,600 or 650, तो 600 ले लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे 33,600. Now comes the tricky part. Bank Nifty should not sustain much below 33,600, 33,500, because if it is doing that, तो लॉन्ग्स को मत रखना, ठीक है, लॉन्ग्स को मत रखना, बिकॉज दैट वुड मीन दैट इट इज ट्राइंग टू ट्रैप द बुल्स एंड इट इज एमिंग टू फिल अप दिस गैप ओवर हियर विच इज प्लेस्ड एट 33,150, ठीक है, 33,150. सो अगर कल फ्लैटिश खुलता है, मॉब लेवल को रेजिस्ट करके नीचे आता है, तो आप थोड़ा सा कुछ शॉर्ट ट्राई कर सकते हो विद द मॉब के ऊपर एज अ स्टॉप लॉस लाइक दिस. टारगेट्स के तौर पे हम थोड़ा सा 33,500-600 पे बुक कर लेना चाहिए सेफ तरीके से, ठीक है. बट शॉर्टिंग प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि मैं बाजार में उतना बेरिश नहीं हूं, मैं बुलिश हूं मार्केट में, ठीक है. अब अगर कल ये गैप अप खुलता है, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है. बाय द वे, लेट मी टेल यू कि हम बाय करके गए बैंक निफ्टी को, ठीक है, नॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी को. सो आई हैव टेकन दैट रिस्क. व्हाई? बिकॉज द रिवॉर्ड्स आर ग्रेटर. ओके, वी आर सिटिंग ऑन अ ब्रेकआउट एरिया, द रिवॉर्ड्स आर ग्रेटर. अगर कल बैंक निफ्टी को फेल करना है, तो कोई बहुत बड़े मार्जिन से फेल नहीं करेगा अनलेस देयर इज अ न्यूज और समथिंग लाइक दैट. सो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज quite bullish to be. Also, how many people would have gone long? This market is very smart. It is encashing your fear. It is encashing your fear. ये देखो, अलीम सिद्दीकी, अरे भाई तुमको मैं सबसे पहले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है. क्यों? यू आर स्पैमिंग. लेट मी जस्ट ब्लॉक, ठीक है. देखो यही प्रॉब्लम है, गंदगी हर जगह करते हैं. ओके, सो वेयर वाज आई? सो दिस गाय ब्रोक माय चेन ऑफ थॉट्स. Yeah, anyways, so the market is trying to encash your fear, right? So practically speaking, कितने लोग यहाँ पे लॉन्ग फ्रेश करके जाएंगे? कोई नहीं करेगा, बहुत ही कम लोग करेंगे, या तो पागल लोग करेंगे, या तो मेरे जैसे पागल लोग करेंगे, ठीक है. मोस्टली लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग दिस मार्केट एज अ मार्केट which was trading down few days back with lot of pessimism, and suddenly it is trading up, and then it opens with a gap and does nothing. तो ये जो है ना, ये फियर क्रिएट करता है. अब यही आज की एक्टिविटी, अगर मार्केट यहाँ खुल के ऊपर जाता, नीचे आता और यहाँ क्लोज करता, तो आपके मन में फियर नहीं आता. बट बिकॉज इट हैज ओपन विद अ गैप अप एंड इट डिड नॉट डू एनीथिंग, इट इज ब्रिंगिंग फियर, ठीक है, इट इज ब्रिंगिंग फियर. सो इट इज ट्राइंग टू एनकैश योर फियर इन बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन. तो मॉब लेवल ये होगा 34,000, 33,980, उसके नीचे ये सिनेरियोज हैं. गैप अप होता है मॉब लेवल के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी अ रन अवे गैप. ओके, एंड मार्केट जो है इसके ऊपर सीधे, पहला टारगेट है मेरा 34,600 and then 35,200. I don't think 35,200 is going to come tomorrow, but yes, 34,500 thereabouts it is very likely, ठीक है. So gap up above mob level is sure to bring 34,600. Okay, flat opening, trade with mob level. If there is a gap down opening, then it is not good, it is bearish. और आप अगर पहले लॉन्ग है, तो पहले अपने लॉन्ग्स को आप कट कर सकते हैं छोटे मोटे लॉस पे, एंड देन
बैंक निफ्टी शुड ट्राई टू टेक सपोर्ट नियर 33,500 600, और वहां से ये अगर यू टर्न करता है, लेट इट कट थ्रू द वी वैप फर्स्ट, let it on a smaller 5 minute chart, let it reverse the trend like this, and then try to buy. ठीक है, with this as a stop loss. That's all. So I think I have explained Nifty and Bank Nifty in a very detailed manner. अगर हम बैंक निफ्टी के लाइन चार्ट को अगर देखें तो it is much better position than the Nifty. So that is why I am not bearish on market, because you see Bank Nifty is trading higher than this price pivot, than this price pivot, and from a long term chart perspective, we are bouncing from a very super duper great level. So generally these type of locations, they tend to produce at least 10% rallies. So if we are in that bracket of 10% rally, तो अभी तो हार्डली कुछ हुआ है, 4% अभी हुआ है, राइट? सो दैट्स द रीजन, एंड बैंक निफ्टी हैज रिस्पेक्टेड दिस चैनल क्वाइट नाइसली. सो अभी हम इसके बाहर दोनों साइड नहीं निकले. So so we have a good chance to shoot lot higher. Let us see how things pan. So that's the perspective on the bank nifty. I hope आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो show me a thumbs up. नहीं लगी तो you can अवॉइड शोइंग थम्स अप, डोंट शो एनीथिंग एल्स. अब जो है हम चलते हैं स्टॉक क्वेरीज की तरफ. तो अगर कोई स्टॉक क्वेरीज है आपके पास तो यू कैन आस्क. मारुति. ओके, मारुति आई हैव एक्सप्लेन्ड कपल ऑफ डेज बैक, और मैंने आपको कहा था कि 83 के आसपास से निकल जाइए. मेरा वही होगा व्यू कि इफ यू आर स्टिल होल्डिंग, या तो आप ट्रेल करो प्रीवियस डे बॉटम पे, यू माइट लैंड अप 8700 विच इज अगेन अ बिग रेजिस्टेंस. ओके, यू कैन डू दैट वे, और यू कैन सिंपली बुक, नो हार्म. वॉल्यूम्स आर गुड, 87 कैन ऑल्सो कम. तो अगर आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. होल्ड कर रहे हो तो ट्रेल करो प्रीवियस डे बॉटम पे. Probably you can gain advantage of the market and the momentum also. 8700 can come in that case. ठीक है. HAL, let me take this stock, Hindustan Aeronautics. So HAL, see HAL पे पहले मैं बहुत लॉन्ग करा चुका हूँ ऑलरेडी, एंड दिस टारगेट एंड दिस टारगेट, ऑल दीज आर डन. सो फ्रेश अभी तो कोई ट्रेड नहीं है इसमें. अगर आप लॉन्ग हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए. We need to buy two kind of stocks. Number one, stock which is bouncing off from a good support. Number two, stock which is giving a fresh breakout, which has withstood this uh, drawdown in the markets. Stocks like these, they are not ready as of now, because they are neither at support nor at big resistance. टाटा पावर कल का वीडियो प्लीज देखो यार. टाटा पावर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये सब स्टॉक, रिटेल के जो स्टॉक्स हैं, इनमें अगर आप फंसे हो तो प्लीज रोज प्रे करिए कि आप इसमें से निकल जाएं. दीज आर ऑल गॉन स्टॉक्स. टाटा पावर, जो भी मुझे रेगुलरली फॉलो करता है, आपको अच्छे से याद होगा, टाटा पावर पे परफेक्ट हमने इसमें जो है ना बाइंग कराई 3 महीने, और परफेक्ट यहाँ पे एग्जिट था. जो भी देखता है उन सबको ये बात पता है, परफेक्ट एग्जिट है. ठीक है. सो इसके बाद इसे हजारों बार मैंने इसमें चेतावनी दी है, इसमें मत फंसो. सो एट बेस्ट वेयर इट कैन गो टिल 228 मैक्सिमम. ठीक है. इट हैज डन बिग डैमेज टू इटसेल्फ. ये स्टॉक बहुत मुश्किल में है, एंड सारे रिटेल्स इसमें फंस चुके हैं. 228 तक जा सकता है मैक्सिमम. एसआरएफ लिमिटेड, वेरी गुड काउंटर. इस पे हम ऑलरेडी लॉन्ग एडवाइस कर चुके हैं बहुत पहले से ही. So keep holding this stock. Trail your longs to this bottom of 2075. Okay, and just keep holding it. First target is 2540. Second target will be, we'll see if how markets and everything pans out. But first target, do lock in some profit at 2550. BEL. BEL. See BEL. I think BEL may more or less we are
वी हैव टॉप्ड आउट. बट ठीक है, मे बी, यू नो, आई डोंट लाइक टेकिंग ट्रेड्स रैंडमली. सो अगर आप लॉन्ग है दोस्त, तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 224 का. एंड इफ दिस ट्राइंगल ब्रेक्स आउट, यू विल सी वन मूव टुवर्ड्स 267. दैट्स इट. वहां पे आपको जो है एग्जिट मार देना है. एग्जिट करना प्लीज, क्योंकि दीज स्टॉक्स, they are definitely in some fag end of their long bullish move. See, you need to understand, markets are all about sector rotation. Markets are all about rotating or churning the winners and the losers. So these stocks, okay, they have not done any correction as of now. So if market rallies this time, they will participate to some extent, but इनकी धुनाई अगले राउंड में निश्चित है. ठीक है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेना, नहीं तो फिर बाद में फंस जाओगे. टाइटन. टाइटन कंपनी लिमिटेड. सी, टाइटन कंपनी जब तक यू नो 2200 के नीचे है ना, अब इसमें लॉन्ग नहीं करना है. ओके. सो टिल it is not coming back above 2200, don't touch, forget about it, give it some time, it will repair itself, it will come back like Hulk, and then we will buy. अभी इसे समय देने का समय है, पैसा देने का समय नहीं है. अदानी ग्रीन. ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेरी है. अदानी ग्रीन. अदानी ग्रीन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे मैंने थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग मैंने सजेस्ट किया था. अगर अभी इसे बाय करना है तो आप कर सकते हो, इमीडिएटली आप बाय कर सकते हो. रीसेंट बॉटम जो है ना 1650, ये आपका स्टॉप लॉस है, और छोड़ दो, देखो कहाँ तक जाता है. ठीक है. सिग्निफिकेंटली अगर ट्रैवल करता है 2400 2500, तब रिव्यू करेंगे. नेक्स्ट क्वेरी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. See, IDFC First Bank is in a perpetual downtrend, you can see. So there's no hope for this stock. It will break the COVID bottom in future. दीपक नाइट्राइट, सेम व्यू है जो कल परसों हजारों बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. अभी शॉर्ट टर्म अप मूव है. RIR. व्हाट इज दिस RIR? इज दिस ये वाली स्टॉक? ठीक है, बाहर निकल जाओ इस स्टॉक से. KEC इंटरनेशनल. KEC इंटरनेशनल. सी, KEC इंटरनेशनल स्टॉक में दम आ रहा है. ठीक है. स्टॉक इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू अगेन come back above the 233 moving average, which is the defining line of a trend, but it's too early. So अभी डिपेंड्स कि आपकी कहाँ की क्या पोजीशन है. अगर पहले का कोई माल अटका है और कोई अपमूव आता है तो पहले उसे एग्जिट करो. ठीक है. और फ्रेश राउंड इसे हम देंगे बाद में. ठीक है. सो दिस इज अ गुड स्टॉक. पोटेंशियली इट कैन बिकम अ बेटर वन इन फ्यूचर. ठीक है. तो इसको जो है रडार पे रखा जाना चाहिए. KEC, वी शुड रिव्यू दिस स्टॉक आफ्टर 10-15 days. I like this chart. I like this developing chart. Okay. I don't like it now, but yes, it has some future. So you can remind me after a few days or few weeks. Adani Port, सब रिटेल लेवल वाले स्टॉक हैं. ओके. सो अदानी पोर्ट, नथिंग एज ऑफ नाउ, इसमें कुछ नहीं है दोस्त. अगर आप लॉन्ग हैं तो 650 के नीचे का आप एक स्टॉप लॉस रखिए. होप फॉर द बेस्ट. एक मूव इसमें 740 आ सकता है. ठीक है. उससे ज़्यादा फिलहाल के लिए इस स्टॉक में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा. ओके. सो बिकॉज स्टॉक मेरे ख्याल से यहाँ पे पीक आउट कर चुका है, एंड इट इज़ अ होप स्टॉक राइट नाउ. आपको याद होगा अदानी पोर्ट पे मैंने बहुत लॉन्ग करवाया है पिछले 1-1.5 सालों में. एंड दिस लास्ट रैली, ये तो बोल के मैंने करवाया है. और इसको करवाया मतलब मैंने नहीं करवाया, मतलब इसको बोला था हमने कि ये चीज़ होगा ही होगा. एंड देन एग्जैक्टली ऑन द ब्रीच ऑफ दिस
ठीक है, इसमें से आउट हो गए थे हम. So probably if this entire box is still working, it will hold this and it will bounce till 748 for the time being. So इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, देखिए 750 740 आता है तो वहाँ पे वापस से रिव्यू कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मिलता है तो डू लॉक प्रॉफिट्स ऑल्सो. ओके, फ्यूचर ट्रेड्स तो हमें वापस से मिल जाएंगे स्टॉक में. अर्जुन चौधरी, स्पैम मत करो, ब्लॉक हो जाओगे. ठीक है, बेसिक एटिकेट सीख लो पहले. चलो ब्लॉक कर देता हूँ. चलो BHEL. सी जो यहाँ पे आके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा ना, नॉक करो, तोड़ो मत. मेरा दरवाजा नहीं तोड़ पाओगे. BHEL 44 रुपए का शेयर है, अभी कुछ नहीं करना है. अभी इस राउंड में 54 जाएगा, 54. पिडीलाइट, पिडीलाइट इज द नेक्स्ट क्वेरी. पिडीलाइट अभी again see these are what, these are all technical bounces, so Pidilite can go till 2250. That's it. And I will be very keen on this stock in future, not right now. Okay, so I really like this stock, but from a future perspective, not right now. So अभी ये technical move है यहाँ तक के लिए, then it should again come back and we will see how it negotiates. Once it behaves like this, starts to come out, then big long trade हम करेंगे इसमें. For what? For new high. So that will be a big trade. So I like to play for these big swings, not these chintu moves. अभी 2250 2200, that is enough. So आप उसके हिसाब से देख लीजिए. संतोष जी पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करिए. बैंक निफ्टी हो चुका है एक्सप्लेन. बैंक निफ्टी रिवाइंड करके एक बार देखिए. बैंक निफ्टी और निफ्टी सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं. रिलायंस, ओके. सो रिलायंस पे तो कल कल के वीडियो में ही मैंने बता दिया है ना, रिलायंस में क्या करना है. बाय करना है. कि डिप आता है तो बाय करेंगे. तो डिप आ चुका है, ठीक है, आप इसे बाय कर सकते हैं. कल और डिप आता है तो बाय करो. सो बाय टिल 2440, यहाँ पे बाइंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है. स्टॉप लॉस 2350, ये स्टॉप लॉस है. एंड रिलायंस ideally should do bare minimum 400 points rally. ओके, टुवर्ड्स 28. पहला टारगेट होगा ये 2770, दूसरा टारगेट होगा 2880 समथिंग. एंड इफ दिस एक्सटेंड्स, हम बाद में देखेंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि बाजार वगैरह कहाँ है, निफ्टी एंड ऑल. सो these are the targets, 3000 kind of levels. Okay, so this is the view for Reliance. कल भी मैंने ड्रॉ करके और लेवल्स के साथ मेंशन किया है, उसका फोटो भी आप ले सकते हो, इसका भी आप ले सकते हो. It's always good to take the snapshot of these photos. You can later on open the video, pause and take a photo, क्योंकि ये फिर फ्यूचर में आप अपने चार्ट पे आप ऐड मिलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ चल रहे हैं हम एज पर दी प्रोजेक्शन. ठीक है. और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है. Right now 150 people are watching and the likes are very less, so let me just wind up the video in next 2 minutes. Vertox advertising, these are all pump and dump schemes, and I think you bought into these schemes. These are all manipulations. So any move that comes, it's a selling opportunity. You should liquidate your holdings. 110 is the resistance. Asahi India maximum rally ये स्टॉक करेगा 110. Asahi India Glass, this is the next query. I like this counter. Okay, see, this is why I like this counter. Beautiful example of a structure based reversal. Okay, so this was the long term channel support, and look, before bottoming, like before starting the actual rocket move, look at the volumes. ठीक है, investors क्यों यहाँ पे buy किया है? Because by that time it had met all the criteria of a good bottom. It has a very nice flip zone over here. It has a double bottom structure. It negotiated with the local forces over here, जैसे आजकल महाराष्ट्र में, and then boom. So now this stock is a
is a strong buy on dip contender. So any down move that comes, you can look to buy. You have this as a stop loss, just 410 400 रुपए के आसपास है, and targets are for new high 660 700. These will be the targets. So if you are already holding, very good. If you want to look for buying opportunity, wait करिए. अगर बैक टेस्ट करता है 460 450, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो. 400 रुपए की स्टॉप लॉस होगी, और 660 700, those will be the targets. Earnings are coming in the month of August, so I think hopefully we will be at the top, just like last earnings over here. भारती एयरटेल, अगेन इसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 700 रुपए तक जाने दो. 700 रुपए के बाद जो है, इसे हम शॉर्टिंग साइड में इसे डेफिनेटली लेंगे. सो अभी वेट करिए, अभी तो 685 है. लेट इट कम नियर 700, देन विल सी. दैट इज द पोटेंशियल शॉर्टिंग एरिया. टारगेट होगा 620. इसे मैं पहले ही, लाइक इन लास्ट राउंड, इफ यू रिमेंबर, in that round itself I kept on yelling for shorting, right? And target was 620. It came till 637 or something. So last time भी इसमें करेक्शन बहुत अच्छे से हो चुका है. So let us see. Don't be in a rush to short, क्योंकि मार्केट्स अभी तेजी में है. So the counters which are supposed to fall in next round, okay, don't short them early. नहीं तो होगा क्या कि आप अच्छा ट्रेड लेके गलत टाइम पे अच्छा ट्रेड लेके आप फंस जाओगे. ये क्या क्वेरी है? GPIL, GPIL. सी GPIL तो बेरिश काउंटर है, ठीक है, बेरिश काउंटर है. मैक्सिमम ये जाएगा 307, वहां पे निकल जाना. इसका लॉन्ग टर्म टॉप वॉप बन चुका है, और ये स्टॉक जो है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. नेक्स्ट क्वेरी, इट वाज अ बिग पंप एंड डंप स्कीम. लेट मी टेल यू दैट आल्सो. ओके, सो इट वाज अ डेलिबरेट पंप एंड डंप स्कीम. इसमें से आप जितना जल्दी निकलेंगे इस एरिया में, 300 310 के एरिया में, उतना फायदा होगा, नहीं तो फंस जाएंगे. हिमांशु शर्मा कह रहे हैं कि टाटा पावर 1000 तक जाएगा. ठीक है भैया, वेरी गुड. मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा. मेरा टारगेट था 320, टॉप बन चुका है वहां पे. यूपीएल, यूपीएल, ओके. सो यूपीएल अभी आई थिंक फ्राइडे को, शायद थर्सडे या फ्राइडे को शायद एक्सप्लेन किया था मैंने. सॉरी, दैट वाज हेवल्स, नॉट यूपीएल. ओके, सो लेट मी सी यूपीएल फ्रेश. सो सी यूपीएल ना बड़ा ही डिजास्टर्स सिचुएशन में है, और एट द सेम टाइम ये एक अच्छे सिचुएशन में भी है. कैसे? एक्सपेंडिंग वेज वाला सिनेरियो है यहाँ पे. सो 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है. सो वॉट एवर मूव यू आर सीइंग इज अ मीन रिवर्जन मूव, और ये वापस गिरेगा. ओके, तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो यू विल हैव टू वेट टिल 740, ओनली देन शॉर्टिंग इज एडवाइज्ड. अगर आपको लॉन्ग करना है, आपने लॉन्ग किया है, तो बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो 600 के स्टॉप लॉस के साथ. ये रिस्की ट्रेड है, ओके, बिकॉज द स्टॉक इज इन अ प्रॉपर बेरिश मूड. ठीक है, सो एनी लॉन्ग स्टॉप लॉस बिलो 600 रुपीज, लाइक 590 600 मैक्सिमम यहाँ पे. एंड अगेन टारगेट विल बी योर 730 काइंड ऑफ लेवल. बट लॉन्ग्स मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए. Why Vedanta is too bearish? Simple, look at the chart. सेक्टर एनालिसिस होता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं. सो दीज वर द लीडर्स ऑफ द बुल मार्केट. इज योर मार्केट इन बुल राइट नाउ? नो, इट्स इन बेयर. सो सेक्टर रोटेशन का विक्टिम है ये, सिंपल. इसमें इतना क्या सोचना है? Why Vedanta is too bearish? Because it is not too bullish, that is why it is bearish. TV18, TV18 broadcast. Last query for tonight. See, it's a bearish counter, dead counters hai. The bull markets, they end when the media houses starts to jump. That is a hallmark of every bull market.
Balaji Telefilms, Ad Labs, TV18, Inox, these junkies, when they start to rally, that is the end of the bull market. So that's it. So it's a bearish counter. Gujarat Alkali. Let us take some last stock and then wind up Gujarat Alkali. See, Gujarat Alkali sitting at a good support. Maybe this stock can rally right now. Maybe. Why I'm saying maybe is because it's coming at the 233 average for the first time. So first time थोड़ा सा respect मिल जाता है, ठीक है. Plus it has a childish support like this. So maybe अगर आप long है तो थोड़ा hold करो. Probably keep stop loss of 595 maximum. ये आपका आखिरी stop loss होना चाहिए. If this is still working, probably one trip you can expect till 950, 850, 950 zone. That's it. But वहाँ निश्चित तौर पे निकल जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये निशानी है इसकी, ठीक है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ऐसा जिन जिन स्टॉक्स में इस राउंड में हमें दिखा है, सबको नोट कर लेना चाहिए, उन सारे स्टॉक्स को, एंड बी रेडी फॉर वन गुड रिट्रेसमेंट मूव ऑफ 61% और 75-80%, एंड नेक्स्ट राउंड में दे आर गोइंग टू क्रैक. Last query for tonight, that is BLS International. So stock is moving very nicely in a laddering up manner. So what you can do is just trail to the previous swing bottom. Right now stands at 177. Three peaks are already made, so trailing is definitely advisable. 177. Let us see where it goes. Keep trailing this structure, जहां तक जाता है जाने दो, ठीक है. और JK Kumar Infra Projects. So this stock is already at a new high. I think it will break another fresh new high, but profit booking पे मेरी advice होगी. SIS SIS Limited for long term. See, long term अभी कुछ नहीं दोस्त, पहले मार्केट को खुद लॉन्ग टर्म बुलिशनेस में जाने दो. दिस इज अ डेड काउंटर, ठीक है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. Any move that comes till 550, 540, that must be sold. It's not ready. It is not yet ready. टाटा केमिकल्स में डिक्लाइन वाला पोर्शन ये चीज हो चुका है, और इस समय अगेन सपोर्ट ठीक है, 780 790 का सपोर्ट ठीक है, बट आई डोंट ट्रस्ट दीज सपोर्ट्स. तो मेरा ये स्टाइल ही नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड लेने का, ठीक है. सो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, बट अगर आप हैं तो 780 का स्टॉप लॉस रखो. ये 880 पे रेजिस्टेंस इसका बहुत ही जेन्युइन अब हो चुका है. Okay, why? Because we have broken this first. Second, we have broken the 233 moving average that is placed at 880, and we have broken the price structure. तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर था, ये जो बड़ा वाला कैंडल का बॉटम था, ये यहाँ ब्रेक हुआ, तो इट विल फेस एज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, इस तरीके से, ठीक है. तो इसीलिए जब, क्योंकि ये पूरा बेरिश स्ट्रक्चर है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं एडवाइस करता, ठीक है. बाकी बाजार है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम हर समय आप खेल सकते हो, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको स्टॉप लॉस रखना, ठीक है. दैट्स इट. सो लेट्स वाइंड अप आज का सेशन दोस्तों. 1 घंटा हो चुका है, समय सीमा समाप्त हो चुकी है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेक एज मैनी क्वेरीज एज पॉसिबल. जिनकी क्वेरीज नहीं ले पाया, कल हम डेफिनेटली लेंगे. चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम मी, यू कैन रजिस्टर फॉर द जुलाई 10th ट्रेनिंग, एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू विल बी एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू सो मच. टेक केयर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन. गुड नाइट. जय माता दी.